Good morning, students. Today we are going to discuss the refraction of light through a compound plate. So, let us consider a compound plate made up of transparent media B and C. Okay, this is the media B and this is the media C. So, A is the real medium, so having refractive index A. इसका refractive index A आ जाएगा, इसका B आएगा, इसका C आएगा. So let it be held in a medium A. Okay. Let a ray of light is incident on a compound plate along OA at angle I. It is refracted along AB. Okay, at angle R1. It is refracted along AB at angle R1. So according to Snell's law हमारे पास आएगा देखो A टू B मीडियम में जा रही है, सो वी कैन राइट इट एज A म्यू B और इसको हम ऐसे लिखते हैं म्यू B अपॉन म्यू A. दिस इज इक्वल टू साइन I2 साइन R1 साइन I ओवर साइन ऑफ R1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. The refracted ray AB is incident on phase separating media B and C at R1. ओके, जो रिफ्रैक्टर रे आ रही है वो यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है थ्रू एंगल R1 और एंड इट इज़ रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग BC एट R2. अब अगेन यहाँ पे सेकंड मीडियम यहाँ से इस मीडियम से इस मीडियम एंटर कर रही है. सो इफ दिस एंगल इज R1, सो दिस इज ऑल्सो R1. ओके, so let this ray be refracted through angle R2. Let this angle be R2. So this is also R2. So it is if it is refracted along R2, then it can be written as B mu C. This is equal to sine of R1 upon sine of R2. This is the equation number 2. Okay. So the refracted ray BC fall at R1 R2. अब ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये BC रे ऑफ लाइट आ रही है, ये कहाँ पे फॉल कर रही है? C पॉइंट के ऊपर फॉल कर रही है. नाउ C मीडियम तो अगेन रियर मीडियम में जाना बच्चे, तो यहाँ पर एंगल आपके पास R2 आ रहा है. इस एंगल को हम I एज्यूम कर लेंगे बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल. So we can write it as from this medium to this medium, it means C mu A is equal to sine of R2 upon sine of I. This is equation number 3. Now multiply equation number 1, 2, 3. Multiply equation 1, 2 and 3. Okay, so we have A mu B into B mu C into C mu A. This is equal to sine of I upon sine of R1 into sine of R1 upon sine of R2 into sine of R2 over sine of I. Now sin R1 cancel out with sin R1, sin I cancel out with sin I, sin R2 cancel out with sin R2. Okay, so we have A mu B into B mu C. This is equal to 1 by C mu A. C mu A, and it can also be written as A mu C. अगर ऐसे भी लोकल आ रहा है तो हमने इसको इस तरह से लिखना है, A को ऊपर ले जाना, A mu C आपके पास आ जाएगा. Now our next topic is explain the total internal reflection of light. So let us consider, let xy is the interface. Let xy is the interface that separates from rare medium to denser medium. दोनों medium को separate कर रहा है. Let O is a point object in the denser medium. Let us suppose that this is a point object. It is placed in the denser medium. This is the denser medium. Okay, this is the rear medium. So point object O is placed in the denser medium
A ray of light is in light starting from O incident normally along OA. So first ray of light जो है इस तरह से फॉल करेगी OA, okay, on XY and passes straight along AB. तो बच्चे ये स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, ये स्ट्रेट पास कर जाएगी अलॉन्ग AB. एंड अनदर रे OA1 डेविएट फ्रॉम नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग A1 B1. नाउ हमने रे ऑफ लाइट को हमने किसी एंगल के साथ हमने रिफ्रैक्शन शो की. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट दिस इज द नॉर्मल. तो हमारी जो एंगल रे ऑफ लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर में जा रहा है, सो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, सो लेट अस सपोज दैट दिस इज, इसको नेमिंग देते हैं हम OA1. दिस इज A1, so this is refracted along A1 B1. This is the angle of refraction. Now again, if we increase the angle of incidence, so again draw a perpendicular, a normal. Again the angle of refraction also increases, और increase कर जाएगा angle of refraction. Okay, so ये increase कर जाएगा. This is I1, this is R1, this is I2, this is R2. Now if we increase the angle of incidence, so एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल. दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू C. सो क्रिटिकल एंगल आपका क्या हो गया कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री शो करे, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल. इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle, if this angle is I is greater than C, okay, then जो लाइट है वो टोटली रिफ्लेक्ट होके इस मीडियम के नीचे ही आ जाएगी, इस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी. देन लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन. ओके, सो दिस इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मीन्स जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डेंसर मीडियम में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी बच्चे वो आपकी डेंसर मीडियम में ही बनेगी. ओके, सो उसके लिए कंडीशन आपके पास आती है कि इंसिडेंट एंगल दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल एंगल क्या होता है. द क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट 90 डिग्री. ओके, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ. इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू अ डेंसर मीडियम फ्रॉम इंटरफेस of the denser medium and rare medium. Okay, now there are some conditions for total internal reflection. Total internal reflection, so these are very very important. So number one, there are two conditions. Number one, when I is equal to C, when I is equal to C, ओके, देन 90 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 90 डिग्री. सो वी कैन से दैट अभी आपकी कंडीशन नहीं आएगी, इससे कंडीशन ये बनेगी, कंडीशन आपके पास आएगी दैट इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. नंबर टू, ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम. जो भी आप पॉइंट ऑब्जेक्ट रख रहे हो बच्चे वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए. सो फर्स्ट आपके पास कंडीशन आ गई इंस्टेंट एंगल दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंड सेकंड थिंग इज जो आपके पास मीडियम है दैट शुड बी ऑब्जेक्ट दैट शुड बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन थ्रू अ कंपाउंड प्लेट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this topic. Next, its application will be discussed in the next lecture. Okay, thank you very much.